آج جمادی الاول کی 8 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن جو شخص بھی اللہ پاک کو یا غنیوں سے پکارے گا وہ اللہ پاک سے اگر 400 کروڑ بھی مانگے تو میرا اللہ پاک اس کو دے گا، کیونکہ آج کا دن جمعۃ المبارک کا دن ہے اور جمعۃ المبارک کا دن مومنوں کا عید کا دن ہے، اس لیے لازمی اس عمل کو پڑھ کر دیکھ لو، خود ہی اندازہ ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج جمادی الاول کی 8 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آج یا غنیوں کا یہ خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج جو بندے بھی اللہ پاک کو راضی کرنا چاہتا ہے، غیب سے رزق حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے قرضوں کو ادا کروانا چاہتا ہے، وہ آج جمادی الاول کی 8 تاریخ کو یا غنیوں کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لے۔ اللہ والوں، جمعۃ المبارک کے دن کو مومنوں کی عید کا دن کہا گیا ہے، اور یہ دن اتنا خاص ہے کہ جب بھی کوئی بندہ جمعۃ المبارک کے دن اللہ پاک سے 1 کروڑ مانگے تو اللہ پاک 70 کروڑ سے نوازتا ہے، یعنی 70 گنا زیادہ عطا کرتا ہے۔ اس دن مہربانی امت محمدی پہ زیادہ کی جاتی ہے، جہنمیوں کو جہنم سے بھی آزاد کیا جاتا ہے، عذاب قبر بھی اٹھا لیا جاتا ہے، اور جو بندہ جمعۃ المبارک کے دن پیدا ہو اللہ رب العالمین اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ والوں، آج لازمی آپ نے یہ عمل بھی پڑھنا ہے اور دعا بھی اچھے انداز میں مانگنی ہے، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور جو دعا ویڈیو میں مانگی جاتی ہے اس دعا میں بھی شرکت کیا کریں۔ اللہ والوں، وہ دعائیں آپ کے لیے اور میرے لیے ہی ہوتی ہیں تاکہ اللہ پاک ہم پر اپنی نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے، کیونکہ ویڈیوز کو 2-3 ہزار بندے دیکھتے تو ہیں۔ تو اللہ والوں، لازمی دعاؤں میں حصہ لیا کریں۔ اور آج جو عمل دے کر جاؤں گا وہ یا غنیوں کا ہے، اور یا غنیوں رب کا صفاتی نام ہے جس کے معنی ہیں غنی کر دینے والی ذات۔ غنی صرف رب کر سکتا ہے، رزق صرف رب دے سکتا ہے، کامیابی صرف رب کی طرف سے ہے، آسانیاں صرف رب کی طرف سے ہیں۔ اگر آپ رب کریم کی طرف سے ہر طرح کی آسانی چاہتے ہیں، ہر طرح کی کامیابیاں چاہتے ہیں، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر جب کبھی آپ لوگ مایوس ہو جائیں یا آپ پر مشکل وقت آ جائے تب بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جمادی الاول کی 8 تاریخ اور دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا آپ تمام حضرات کے لیے ضروری ہے۔ اگر آج اس وظیفے کو پڑھ لیں گے تو اللہ رب العالمین آپ پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے گا۔ اور اللہ والوں، اس وظیفے کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ 2 ناموں کے ساتھ ملا کر، یعنی کہ یا ربنا، اے میرے پروردگار، اور یا ربی، جو یا ربی ہے اس کو کہتے ہیں اے ہمارے رب، اور پھر جو آپ نے ملانا ہے وہ یا غنیوں۔ اللہ والوں، اور صرف 21 مرتبہ، اور اس بات میں صرف 1 سورت آپ نے ملانی ہے اور یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ لیکن اس کی ایک خاص تعداد ہے، تعداد میں غلطی نہیں کریے گا، کیونکہ آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کو کامیابی نہیں ملتی۔ آپ کو ثواب ملتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں قرآن پڑھیں گے یا اللہ پاک کا نام پکاریں گے تو آپ کو ثواب تو ملے گا، لیکن اگر اللہ پاک کی رحمت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو تھوڑی محنت تو کرنی پڑے گی۔ اور اللہ والوں، وہ محنت کیا ہے؟ وہ محنت یہی ہے کہ آپ لوگ اللہ رب العالمین کو آج یا غنیوں سے پکاریں، یا ربنا اور یا ربی کے ساتھ پکاریں، اور پھر دیکھیے گا اللہ پاک کس طریقے سے آپ کو نوازتا ہے۔ آج کا دن بہت خوبصورت دن ہے، آج کا دن اللہ پاک سے مانگنے کا دن ہے۔ آج مانگ لو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ آپ مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج کا یہ خاص عمل خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی آپ لوگوں نے لازمی بتانا ہے۔ اللہ والوں، آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کی جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں جمادی الاول کی 8 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کا دن آ جائے تو آپ نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد ہر دعا قبول ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، اللہ رب العالمین آپ کو غیب سے نوازیں گے۔ اس لیے آپ لوگوں نے یہ خاص اور معجزاتی وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ کوئی غلطی کوتاہی نہیں کیجیے گا، کیونکہ وقت کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے اور جگہ کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ چاہو تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز جمعۃ المبارک کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ جب وقت ملے، جب موقع ملے، آپ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ کر اپنی قسمت کو 4 چاند لگوا سکتے ہیں۔
अब अल्लाह वालों आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफ़े की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है ये ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा, लेकिन उससे पहले आज की ख़ास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है। ए मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे नबी पाक से मोहब्बत का वास्ता, रोज़े जज़ा का वास्ता, आज जमादिल अव्वल की 8 तारीख और दूसरे जुमतुल मुबारक का वास्ता, हम सब की तमाम परेशानियों को दूर कर दे। हमारे रिस्क में बेशुमार की बरकतें और रहमतें अता फरमा। मेरे मौला, हमें अपने सिवा कभी किसी का मोहताज ना बना। मेरे मौला, हमें गैब से नवाज दे। हमारे रिस्क में गैब से बेशुमार की बरकतें डाल दे। हमारे तमाम मामलात को सीधा कर दे। या रब्बे जुल जलाल, तू तो मांगने वाले को पसंद करता है और ये मुबारक जुमतुल मुबारक का दिन है, जमादिल अव्वल का महीना है। या रब्बे जुल जलाल, हमें अपनी रहमत से, अपनी शान से, अपने फजल से नवाज, गैब से नवाज दे। और जो मेरे बहन भाई परेशान हैं, कर्जदार हैं, मेरे मौला, उनके गैब से असबाब बना, गैब से उनके कर्जों को दूर फरमा दे, उनकी तमाम बीमारियों को दूर कर दे। या रब्बे जुल जलाल, तू तो मालिकों का मालिक है, बादशाहों का बादशाह है, नवाजने वाली ज़ात है, रहमत करने वाली ज़ात है। आज तेरी बारगाह में जो कोई बिलखुसूस इस वीडियो में जुड़कर दुआ कर रहा है, तेरे आगे हाथ फैलाए, तुझसे आरज़ू कर रहा है, तुझसे इल्तिजा कर रहा है, जो किसी वजह से हाथ नहीं उठा पा रहा, अल्लाह मेरे मौला, वो फिर भी दिल से जुड़ा हुआ है, उसकी भी तमाम तर परेशानियों को दूर कर दे। हम सब पर अपनी ख़ास नज़र करम और नज़र रहमत अता फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। रिज़्क़ हलाल अता फरमा, रिज़्क़ करीम अता फरमा, रिज़्क़ कसीर अता फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें हलाल कमाने की तौफीक अता फरमा, हराम के लुक़मों से बचा। या रब्बे जुल जलाल, अपने सिवा कभी किसी और का मोहताज ना बनाना। मेरे मौला, हमें अपने अलावा कभी किसी का मोहताज ना बनाना। या रब्बे जुल जलाल, बिलखुसूस गाज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा। उन सब पर अपनी ख़ास नज़र करम और नज़र रहमत फरमा दे। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हज़ारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए आप लोगों ने दुआ भी करनी है और लाजमी आप लोगों ने आमीन भी कहना। कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन लिखना है। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है ज़रा ध्यान से समझिएगा। आप लोग बाज़ औक़ात चंद गलतियाँ कर जाते हैं, उनको समाअत कर लें। वजीफ़ा पढ़ते वक्त दाएं बाएं नहीं देखना। मकसद कोशिश करें कि अपनी आंखों को बंद करके वजीफ़ा करें और वजीफ़ा होने के बाद अपनी आंखों को खोल लें। या फिर अगर आप लोग आंखें को खोल के करना चाहते हैं तो नज़रें सिर्फ सजदे वाली जगह पर रखिएगा। जो मुसल्ले पर आप बैठे हुए जहाँ पर सजदा करते हैं वहीं पर अपनी नज़रों को रखें या अपनी गर्दन को झुका लें। इस तरीके से वजीफ़ा करें ताकि अल्लाह पाक की वहदानियत आप लोगों को मिल सके, रब की तवज्जो मिल सके। अदब के दायरे में बैठें। सबसे बड़ी बात, कोशिश करें कि अत्तहियात की हालत में बैठें। अगर आप लोगों का वजन ज़्यादा है, अत्तहियात की हालत में नहीं बैठ सकते, पाँव सुन हो जाते हैं, सो जाते हैं, तो फिर आप लोग चौकड़ी मार के, जिसे आलती पालती भी कहते हैं, चौकड़ी भी कहते हैं, आप लोग वैसे बैठ जाएं। लेकिन बैठना अदब के दायरे में है, अपने आप को समेट के है, सर झुका कर बैठना है। और फिर आप लोगों ने जो है बावजूद जब आप लोग बैठ गए, फिर आपने सबसे पहले ना आप लोगों ने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। बाज़ औक़ात हमारे गुनाह होते हैं जो हमारी पकड़ करवा लेते हैं। अल्लाह वालों, रब से हर रोज़ इस्तग़फ़ार करा करें, अल्लाह पाक से रोज़ वाला अपने गुनाहों की तौबा करा करें। और अल्लाह वालों, दिल से तौबा करा करें। दिल से निदामत अल्लाह पाक को पसंद है। ये नहीं कि रस्मी बस मुँह से अस्तग़फ़िरुल्लाह कह रहे हैं और दिल में कोई और ख्यालात चल रहे हैं। ऐसा इस्तग़फ़ार आपको फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा। सवाब दिलवा सकता है, फ़ायदा नहीं पहुँचा सकता। फ़ायदा हासिल करने के लिए तवज्जो ज़रूरी है, क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं, कोई दुनियावी इंसान है जिससे आप बात करेंगे तो तवज्जो ज़रूरी होती है। अगर आप लोग उसकी तरफ देख के बात नहीं करेंगे, मुतवज्जो नहीं होंगे और बात कर रहे होंगे, वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं देगा। वो रब है,
سب سے بڑا بادشاہ، ہر کسی کو بنانے والا، کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں؟ تو اللہ والوں ادب سے بیٹھیں۔ بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یار خدا کے بندو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو، یار رب کی جو وحدانیت ہے، رب کی جو روحانیت ہے، جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے؟ ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا، ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں، اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں، ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں، آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے شفا چاہتا ہے، کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، یا پھر کوئی مقروض ہے، یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے، بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا ربنا، یا ربی، یا غنیو، یعنی کہ اللہ پاک کے 3 صفاتی نام آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ پڑھنے ہیں۔ اللہ والوں، یا ربنا کے معنی ہیں اے میرے رب، جو کہ صدا کے ہوتے ہیں، یا ربی یہ بھی پکار کے ہوتے ہیں، اور یا غنیو یہ اللہ پاک کی وہ صفت ہے جو ہمیں غنی کرتی ہے۔ غنی کی معنی صرف پیسوں کے ہی نہیں، اللہ پاک آپ کی عمر میں برکت دے دے تو وہ بھی غنی کرنا ہوتا ہے۔ اللہ پاک آپ کے علم میں برکت دے دے تو اس کو بھی غنی کرنا ہی کہتے ہیں۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اللہ پاک کے یہ 3 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ جن کے کاروبار رک چکے ہیں، جن کے معاملات رک چکے ہیں، رزق میں فراوانی نہیں، دعاؤں میں قبولیت نہیں ہو رہی، یا پھر آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا رب ناراض ہو چکا ہے، رب کی رحمتیں مجھ پر برس نہیں رہی، آزمائشوں پہ آزمائشیں اور پکڑ سخت ہوتی چلی جا رہی ہے، تو اللہ والوں رب کے یہ 3 نام آپ لوگ دل سے پکاریں۔ دل سے پکارے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور تصور میں روضہ رسول کو رکھیں، یا پھر اللہ پاک کے گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو رکھیں، اور پھر پڑھیں یا ربنا، یا ربی اور یا غنیو۔ ان تینوں کو جب آپ لوگ ملا کر پڑھیں گے نا تو اللہ پاک کی رحمتیں جوش میں آئیں گی، فرشتے آپ پر سلامتی بھیجیں گے۔ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ 40,000 فرشتے سلامتی بھیجتے ہیں اس بندے پہ جو سچے دل سے ندامت کے ساتھ فرش پہ بیٹھ کے اللہ پاک کو یاد کرتا ہے۔ تو اللہ والوں، آج آپ کو وہ وظیفہ دے رہا ہوں، یوں سمجھے کہ کامیابی کا وہ خاص چراغ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ یقین کریں اس وظیفے کو یہاں پڑھا، یہ وظیفہ مکمل ہوا، آسانیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، غیب سے اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں، کیوں تو آپ نے کئی بار اور بہت سارے وظائف پڑھے ہی ہوں گے، لیکن یہ جو وظائف ہیں یہ یقین کریں اتنے مستند وظیفے ہیں، اتنے خاص وظیفے ہیں کہ جب بھی ان وظائف کو پڑھا جائے گا، جب بھی ان کا ورد کرا جائے گا، کامیابیاں گارنٹی کے ساتھ آپ کو مل کے رہیں گی۔ اب اللہ والوں کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ربنا، یا ربی، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یا ربنا، یا ربی، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا ربنا، یا ربی، یا غنیو،
तीनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सिर्फ 21 मरतबा 21 टाइम्स आपने ये अमल करना है। और जैसे कि पहले मैंने कहा था, कोई सदका लाजमी करिएगा। तो अगर आपने एक मुट्ठी चीनी या चावल या पानी का गिलास कुछ रखा है तो उसके ऊपर फूंक मार दें, उसके ऊपर दम कर दें। इन 3 नामों को आप लोग 21 मरतबा पढ़ के उस पर दम कर दें, फूंक मार दें। अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या करना है? अब आप लोगों ने अल्लाह पाक को दूसरे नंबर पे किस नाम से पुकारना है? ये नाम है या लतीफू। आपने पहले भी बहुत बार या लतीफू के वज़ाइफ पढ़े होंगे, लेकिन आज जो अमल दे रहा हूं, जो आपको अमल बता रहा हूं, जो वजीफा बता रहा हूं, इसकी बरकत बहुत ज्यादा है। इसकी बरकत, इसकी फजीलत, इसके फयूज़ व बरक़ात बहुत ज्यादा है, तसव्वुर से बाहर है। क्योंकि अगर मैं इसकी फजीलत के मुतालिक बताना शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। या लतीफू अल्लाह पाक का बहुत ही बाबरकत और पावरफुल नाम है, जो अल्लाह ताला के सिफाती नामों में से एक है। इसके रूहानी असरात, बरकतें और फायदे निहायत गहरे और पुर असर होते हैं। अल्लाह वालों, या लतीफू के मायने हैं नरमी, मेहरबानी और बारीकी से काम लेने वाला, जो बंदे के हाल को उसके शऊर से पहले जानता है, जो छुपी हुई चीजों को बाखूबी जानता है और हर काम में हिकमत रखता है। अल्लाह वालों, ये इसमें मुबारक बहुत ही बाबरकत है। अगर आपके घर में अक्सर झगड़े होते हैं, बात बात पर तलखियां हो जाती हैं, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी हो गई है, तो आज इस अमल को अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ें। जो मैं आपको तरीकेकार और तरतीब बता रहा हूँ, उस तरीके से सिर्फ पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह मियाँ बीवी में तो जो मोहब्बत की कमी आ गई है ना, तड़पने वाली मोहब्बत पैदा हो जाएगी। घर के लड़ाई झगड़े इंशाअल्लाह फौरी तौर पे हल हो जाएंगे, निजात हासिल होगी। अल्लाह वालों, इसमें मुबारक की बरकत से दिलों में मोहब्बत, नरमी पैदा होती है। इस नाम की बरकत से, इस नाम का विर्द करने से आपके घरेलू मसले मसाइल हल हो जाते हैं, आपके दुश्मनों के शर से हिफाजत भी हो जाती है। नहीं यकीन आता तो बेशक आजमा के देख लो, पढ़ के देख लो। वजीफा कोई बड़ा थोड़ी है, आप भी जानते हैं मैं आमाल छोटे ही लेकर आता हूँ। कम पढ़े लेकिन सुथरा पढ़े, लेकिन अच्छा पढ़े, और इंशाअल्लाह ये वजीफा आपकी किस्मत तब्दील कर देंगे। रिस्क तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मामलात तो बेहतर होंगे ही होंगे, आप लोगों के लिए आसानियां भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो अल्लाह वालों, कोशिश करें कि आप लोग इस अमल, इस वजीफे को उसी तरह से पढ़ें जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब दूसरे नंबर पर या लतीफू किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिज़ा कीजिएगा। या लतीफू 1 बार हो गया, या लतीफू 2 बार हो गया, या लतीफू 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या लतीफू को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने या लतीफू को सिर्फ और सिर्फ 33 बार, 33 टाइम्स, 33 बार आप लोगों ने या लतीफू पढ़ना है। जब 33 बार आप लोग या लतीफू पढ़ लें, उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है? उसके बाद अर्श आजम पे लिखे हुए कलेमात हैं, और ये नबवी आमाल भी हैं। आपने पहले भी बहुत बार ये नबवी नुस्खा पढ़ा होगा, क्योंकि ये अर्श आजम पे लिखे हुए कलेमात हैं। और ये दुआ कोई आम दुआ नहीं, ये दुआ नबी पाक के जद्दे अमजद यानी कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अमजद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कलेमात हैं, जो कि कुरान में भी नकल हुए हैं। फरिश्ते जो तिलावत करते थे आपकी आजमाइश के लिए। तो बहुत बड़ा वाकया है, मैं उसके चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन फजीलत बता रहा हूँ कि ये दुआ कितनी खास है, जो अर्श आजम के खजानों में से एक खजाना है। वो दुआ कौन सी है? सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अजीम, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अजीम, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अजीम। ये कितने मुबारक कलेमात हैं, ये इतने मुबारक कलेमात हैं कि अल्लाह पाक फरमाता है कि बस इस दुआ को डायरेक्ट मुझ तक आने दो, यानी कोई राबता दरमियान में नहीं होता, डायरेक्ट आपकी दुआ अर्श मुअल्ला पे अल्लाह पाक की बारगाह में पहुंच जाती है। जो बंदा चाहता है कि डायरेक्ट मैं अपना राबता अल्लाह पाक से मजबूत कर लूं, तो फिर वो आज इन नामे नामी इसमें गिरामी को पढ़े, और साथ ही साथ ये खास दुआ जो मैं आपको बता रहा हूँ वो तीसरे नंबर पे पढ़े। वो कौन सी दुआ है? बहुत ही अच्छी दुआ है, वो बहुत छोटी भी दुआ है, बड़ी दुआ नहीं है। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अजीम बआसानी पढ़ लेंगे। किस तरीके से पढ़ना है बस इसको मुलाहिज़ा कीजिएगा। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अजीम, ये 1 बार हो गया। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अजीम, ये 2 बार हो गया। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अजीम,
یہ 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सिर्फ एक तस्बीह 100 बार पढ़ना है। अल्लाह वालों कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इतना लंबा वक्त नहीं लगने वाला। 100 बार पढ़ना है, लेकिन आपकी 100 परेशानियां हल हो जाएंगी, 100 मसले मसाइलों का हल हो जाएगा। ये इतने मुजर्रब कलिमात हैं, ये इतने ख़ास कलिमात हैं कि जब भी इनसे मदद मांगी जाती है तो अल्लाह वालों मदद लाजमी अल्लाह पाक भेजते हैं, फरिश्ते लाजमी ज़मीन पर उतर आते हैं। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है? अब चौथे नंबर पे जो आज का आखिरी अमल है, जिसके बगैर ये वजीफा नामुकम्मल है, बहुत ही अल्लाह पाक का खास नाम है या मुजीबो। आपने पहले भी बहुत बार इन नामों के वज़ाइफ पढ़े होंगे। अल्लाह वालों, ये वज़ाइफ उस वक्त पढ़े जाते हैं जब आप लोग सख्त मुश्किल में हो, सख्त आजमाइश में हो, यानी जब आपके दिल के अंदर जब आपको यूं महसूस हो कि मैं बिल्कुल तन्हा हूं, मेरे ऊपर तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं, मुझ पर आजमाइश ही आजमाइश है। उस वक्त अल्लाह वालों या मुजीबों का विर्द करना, हमें यकीन करें, बहुत फायदा देता है। कभी दिल के अंदर कोई ऐसी ख्वाहिश दबी हुई हो ना, जिसे आप लोग बरसों से पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं, कोई ऐसी दुआ, कोई ऐसी तमन्ना जो आपके आंसू बन बन के बिखर रहे हैं, आप लोग मांगना चाह रहे हैं, लेकिन वो दुआ कबूल नहीं हो रही, तो फिर आज आप लोगों ने या मुजीबों का ये वजीफा पढ़ना है। आज ही एक ऐसा खास आप लोगों को वजीफा बता रहा हूं या मुजीबों का, यानी कि ए दुआओं को कबूल करने वाली जात, यानी ए दुआओं को कबूल करने वाले रब। इस तरीके से आप लोगों ने या मुजीबों के मायने होते हैं। वैसे एक नाम के कई कई मायने होते हैं, लेकिन मैं आप लोगों की खिदमत में जो वजीफा पेश करने जा रहा हूं वो मैं इसके मायने के मुताबिक पेश कर रहा हूं, क्योंकि जो किताब में लिखा हुआ है अल्लाह वाले जो फरमा रहे हैं, तो मैं उसके मुतालिक आपको बता रहा हूं। इसके मायने आपको और भी मिल जाएंगे। कहीं ऐसा नहीं बोलिएगा कि मैं झूठ बोल रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, इसके मायने ये भी हैं। वरना आप लोग फिरोजुल लुगात उठाकर देख लें, उस लुगत की किताब में या मुजीबू के आप लोगों को कम से कम 33 से 36 मायने आपको उसमें मिल जाएंगे। अनवारुल लुगत में जाएंगे तो उसके अंदर थोड़े और ज्यादा हैं, इसलिए आप लोग चेक कर लें। इसकी जो मायने हैं वो ये भी हैं, ए दुआओं को कबूल करने वाले रब। ये वो अजीमो शान दरवाजा है जो बंदे की सदा सुनकर अर्श तक जवाब पहुंचा देता है। यानी इस नाम की पुकार से अल्लाह पाक ने एक दरवाजा बनाया हुआ है। एक आसमान में दरवाजे हैं, उनमें एक दरवाजा ये भी है क्योंकि या मुजीबू पढ़ने से खुलता है, उस पर दस्तक होती है। तो अल्लाह वालों जब आप लोग सदा लगाएंगे तो वो खुल जाएगा दरवाजा। पढ़ना कितनी बार है, इस तरतीब को जरा समझिएगा। या मुजीबू 1 बार हो गया, या मुजीबू 2 बार हो गया, या मुजीबू 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने या मुजीबू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। या मुजीबू को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 11 बार 11 टाइम सिर्फ 11 बार पढ़ना है। सिर्फ 11 बार या मुजीबू पढ़ेंगे, कोई ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला, बहुत छोटा सा अमल है। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आपने अव्वल पढ़ा था। अगर कोई चीनी रखी है अपने पास 1 मुट्ठी, जैसा कि मैंने आपको कहा था, चीनी चावल आटा जो भी आपने सदके के लिए रखा है, या काले चने रखे हैं या पानी का गिलास रखा है, उस पर दम कर दे। पानी रखा हुआ तो पानी को पी लें, और जो आपने सामान रखा है उसको आप सदका कर दें रब की राह में। सदका करने से मुराद क्या है, अपनी छत के ऊपर रख दें या फिर बाहर रख दें, घर के बाहर रख दें, तो इस तरीके से सदका हो जाता है। तो अल्लाह वालों, अब आप लोगों ने दुआ अच्छे अंदाज में मांगनी है। वजीफा आपने पढ़ लिया, बहुत मेहनत से पढ़ा, अच्छे तरीके से पढ़ा, यकसुई के साथ पढ़ा, लेकिन जब आप लोग दुआ अच्छे अंदाज में नहीं मांगेंगे, दुआ आप लोग अगर जल्दबाजी में मांगेंगे तो अल्लाह वालों फिर फायदा नहीं होगा, फिर वजीफे का फायदा नहीं होता, फिर वजीफे की वो रूहानियत हमें नहीं मिलती। तो लिहाजा वजीफे को फायदा पुरअसर बनाने के लिए आप लोगों ने दुआ अच्छे अंदाज में मांगनी है। जिस तरीके से मैं अपनी वीडियोस में दुआ मांगता ही हूँ, तो अल्लाह वालों वो सिर्फ आपको बताने के लिए कि रब से किस तरीके से मांगा जाता है। अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो मुझसे, अल्लाह पाक अपने शान खुदाई के साथ के माफ फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।